Sat Shri Akal friends, welcome to Learn Maths Online YouTube channel. This is lecture number 5 of sequences and series, class 11th, and today we will discuss about the first 18 questions of miscellaneous exercise from NCERT. Before doing the questions from NCERT, I would like to remind what is arithmetic progression. Like general form of arithmetic progression is a plus d, a plus 2d in this way, and the general term is a plus n minus 1d, and sum of first n terms can be calculated with this formula n over 2, 2a plus n minus 1d, or n over 2 a plus l, where l is last term. And GP, in case of GP, general form of GP is AR square up to AR n minus 1, where nth term or general term of GP will be AR raised to power n minus 1, where A is first term and R is common ratio. And sum of n terms can be calculated with the help of this formula, R raised to power n minus 1 over R minus 1, or we can write it as 1 minus R raised to power n over 1 minus R. So arithmetic mean of two numbers A and B is A plus B over 2, and geometric mean between A and B is under the root A B. So now we will discuss question number 1 from the miscellaneous. Show that the sum of m plus n nth term and m minus 1th term of an AP is equal to twice the mth term. So let us A be the first term and D be the common difference. So m plus 1th term, m plus 1 plus am minus 1, a plus m plus 1 minus 1d, a plus m minus 1 minus n minus 1d. कि हमने इनको इकट्ठा कर लिया है, a plus a 2a. So after taking d as common, m plus n minus 1, m plus m minus n minus 1, so it will become 2a plus 2m minus 2 times d. So दो कॉमन ले लेना है, ब्रैकेट में बच गया है a plus m minus 1 into d. So we can write it as 2 times mth term am. So we have showed here that m plus 1th term, sum of m plus nth term and m minus nth term is twice the mth term. So let us move further towards question number 3. Let the sum of n, 2n, 3n terms of an AP be S1, S2, S3 respectively. Show that S3 is equal to 3 times S2 minus S1. Very simple. S1 is sum of n terms, so n over 2, 2a plus n minus 1d. S2 is sum of 2n terms, 2n over 2, 2a plus n minus 2a plus 2n minus 1 into d. So S3 is 3n, sum of 3n terms, 3n over 2, 2a plus 3n minus 1 into d. Right hand side 3 times S2 minus S1, S2 minus S1. हमने n over 2 कॉमन ले लिया है, 3 ऑलरेडी बाहर था, अंदर क्या बचा 2 times 2a plus 2n minus 1 into d minus 2a minus n minus 1 into d. 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 to the 4, 4a minus 2a, 4a माइनस 2a, इधर हमने 2a वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली है, 4a माइनस 2a, यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स 2n माइनस 1, इधर से d कॉमन लेने के बाद n माइनस 1, माइनस अंदर गया तो n माइनस n प्लस 1. सिंप्लीफाई 3n ओवर 2 बाहर लिख दिया है, 2a 4a माइनस 2a 2a प्लस 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1. सिंप्लीफाई करके हमारे पास 3n ओवर 2, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d विच इज इक्वल टू S3. यही हमने शो करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to
100 that are divisible by 2 और 5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 और 5 कौन से इंटीजर्स हैं 1 से लेकर 100 तक जो 2 और 5 से डिविजिबल हैं। सबसे पहले हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं इंटीजर जो 2 से डिविजिबल हैं, 2 4 6 8 अप टू 100। तो कितने हो गए, लास्ट टर्म 100 है, an 100 के साथ इक्वेट करने के बाद n की वैल्यू 50 इंटीजर्स हैं टोटल। तो हमने 50 इंटीजर्स का सम कैलकुलेट कर लिया जो 2 से डिविजिबल है। 50/2 2a प्लस n-1d फार्मूला लगा के a कितना है 2, d भी 2 है, तो 2550 आ गया है सम 2 से डिविजिबल जो इंटीजर्स हैं। 5 से डिविजिबल इंटीजर कौन से हैं, 5 10 15 20 अप टू 100। an इज इक्वल टू 100, n यहाँ से कैलकुलेट करके कितना आ गया 20 इंटीजर्स हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। 20 इंटीजर्स का सम s-20 20/2 2a प्लस 20-1 इंटू 5 d 5 है इस केस में। सिंप्लीफाई करके 1050 आ गया है सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 5। ये दोनों को ऐड करके अब सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि दोनों में अगर आप नोट कर रहे हैं तो कुछ रेपिटेशन है। इसमें 10 रिपीट हो रहा है, 10 2 में से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, रेपिटेशन हो गई है। अब हमने 2 और 5 दोनों से जो डिविजिबल है उनका सम कैलकुलेट करना है। इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 and 5, 10 20 30 up to 100। So these integers are 10. So s-10 sum of 10 integers which are divisible by 2 and 5. 2a is 10, so d is also 10, 10 minus 1 into 10. So sum of integers which are divisible by 2 and 5 is equal to 550। तो हमने ये सम माइनस कर देना चाहिए क्योंकि रिपीट हुआ है। 2 वाले जो 2 से डिविजिबल हैं वो जब हमने वो वाले इंटीजर्स का सम लिया उसमें भी आ गया था, 5 वाले में भी आ गया था। ये माइनस करके हमारे पास फाइनल जो आंसर है 3150 ये आ गया है। रिक्वायर्ड सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 yields 1 एज रिमाइंडर। कौन से 2 डिजिट नंबर्स हैं जिनको 4 से डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर उनका 1 बचता है। 12 10 से शुरू होते हैं 2 डिजिट नंबर, तो 11 12 10 11 12 डिविजिबल होता है 4 से, लेकिन 1 रिमाइंडर बचना चाहिए। 12 प्लस 1 13, जब 13 को डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर बचेगा। अब 13 के बाद तो आपका क्लियर हो गया सारा, 4 4 ऐड करते जाओ, 13 प्लस 4 17 प्लस 4 21। और उस साइड हमारे पास 96 डिवाइड होता है लास्ट 4 से, तो 96 प्लस 1 क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए 1। ये हमारे पास इंटीजर्स आ गए हैं, 2 डिजिट नंबर्स आ गए हैं, सॉरी 13 17 21 अप टू 97। जब इनको 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है। सम कैलकुलेट करना है जस्ट, तो हम सबसे पहले a कितना है 13, d आ गया 4, an इज इक्वल टू 97 के साथ an को इक्वेट करके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट, टोटल नंबर ऑफ जो 2 डिजिट नंबर्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे कि टोटल हैं कितने ये नंबर जिनका सम फाइंड करना है। तो इक्वेट करके n की वैल्यू 22 आ गई है। टोटल वी आर टू कैलकुलेट द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ दिस AP। s22 इज 22/2 2a प्लस n-1d फार्मूला लगा के हमारे पास जो आंसर है 1210 ये आंसर आ गया है। ये सम है 2 डिजिट नंबर्स का। कौन से 2 डिजिट नंबर्स का, जब जिनको 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है उनका, वो वाले 2 डिजिट नंबर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज 1, द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म 1 है, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, AR² प्लस AR⁴ इज 90, AR² कॉमन लेके 1 प्लस R² इज इक्वल टू 90, और यहाँ से A1 है तो R² प्लस R² इंटू 1 प्लस R² इज इक्वल टू 90, मल्टीप्लाई करके R² प्लस R⁴ इज 90। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने R² को x ले लिया है ताकि क्वाड्रेटिक बन जाए। ये बाय क्वाड्रेटिक है, R में सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। x² प्लस x इज इक्वल टू 90, x प्लस x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है, सिंपली फैक्टराइज करना है। x² प्लस x 10x माइनस 9 बाय सब्ट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म, 10x माइनस 9x minus 90 is equal to 0. We have two factors, x plus 10 into x minus 9 is equal to 0.
So possible values of x are x is equal to minus 10 or x is equal to 9. But x is equal to r square is equal to minus 10. This is not possible. R square can be equal to 9. So r will be equal to plus minus under root 3. So common ratio is plus minus under root 3. So next question is question number 10. The sum of three numbers in GP is 56. If we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, we obtain an AP. Find the numbers. So let us assume that AR square are three numbers in GP, and given that sum is equal to 56. So by taking A as common, A into 1 plus R square is equal to 56. When we subtract 1, 7 and 21 from these numbers which are in GP, we will get an AP. So in case of AP, we can write twice the second term is equal to sum of first and third term. So here 2 times AR minus 7 is equal to A minus 1 plus AR square minus 21. After simplifying, we have 8 into r square minus 2r plus 1 is equal to 8. From here, we can calculate the value of A in terms of r. A is equal to 8 over r square minus 2r plus 1. And now we will substitute this value of A in the equation number 1. So after substituting A over r square minus 2r plus 1 into 1 plus r square is equal to 56. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया है, सिंप्लीफाई करने के बाद एक क्वाड्रेटिक आ गई है. सिक्स आर स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म minus 12r minus 3r. Minus 15 can be written as minus 12r minus 3r. So we have two factors, r minus 2 into 6r minus 3. In this way, r is equal to either r is equal to 2 or r is equal to 1 by 2. So when r is equal to 2, we will put this value in equation number 1 and we will get a is equal to 8. And if a is equal to 8, then the numbers are ar square. So numbers are 8, 16, 32. So when r is equal to 1 by 2, then a will be equal to, after simplification, we will put r is equal to 1 by 2 in equation number 1. So after the simplification, a is equal to 32, we will get a is equal to 32. So if a is equal to 32, then three numbers are ar square. So numbers will be 32, 16 and 8. Then both the ways, numbers are 8, 16 and 32. Next question. If a plus bx over a minus bx is equal to b plus cx over b minus cx is equal to c plus dx over c minus dx, where x is not equal to 0, then show that a, b, c and d are in GP. Very simple. So we will take first two terms and after the cross multiplication, we have ab minus acx plus b square x minus bcx square is equal to ab plus acx minus b square x minus bcx square. So सिंप्लीफाई करके b स्क्वायर x हमने b स्क्वायर वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दी हैं, ac वाली राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दी हैं. x कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से 2 भी कैंसिल हो गया. हमारे पास क्या बचा, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac. तो आपको पता है कि अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू ac है तो a b c विल बी इन GP. सो b ओवर a इज इक्वल टू c ओवर b. अब दूसरी दो टर्म्स को इक्वेट करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया है, c स्क्वायर इज इक्वल टू bd. सो वी कैन राइट इट c ओवर b इज इक्वल टू d ओवर c. कॉमन रेशियो सेम है तो हम लिख सकते हैं a b c d आर इन GP. वेरी सिंपल. Next question. Question number 14. Let S be the sum, P be the product, and R be the sum of reciprocals of n terms in GP. Prove that P square into R raised to power n is equal to S raised to power n.
तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट GP is a AR square AR cube up to AR raised to power n minus 1. So clearly sum will be A times R raised to power n minus 1 over R minus 1. So this is equation number 1. Product is A into AR square into AR cube into AR raised to power n minus 1. AR कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स, तो AR raised to power n. R पावर बेस सेम पावर्स है 1 plus 2 plus n. सो 1 plus 2 plus अगर सम n तक है तो उसका फार्मूला होता है n into n plus 1 over 2. अगर सम ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो n minus 1 तक जाता है तो फार्मूला होता है n into n minus 1 over 2. यहाँ ये फार्मूला लगाया है n into n minus 1 over 2. ये p की वैल्यू आ गई है. अब रेसिप्रोकल सम ऑफ 1 over a plus 1 over AR plus 1 over AR स्क्वायर AR minus 1. सो हमारे पास इस ये भी GP है, इसमें रेशो फर्स्ट टर्म 1 over a है, कॉमन रेशो 1 over R है, तो फार्मूला लगाएंगे सम का 1 over a R raised to power n minus 1 R minus 1. तो उस फार्मूले के थ्रू हमने सिंप्लीफाई कैल्शियम ले लिया है. ये इसका ये वाली टर्म्स का जब हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे 1 minus R में से और 1 minus R में से, तो ये क्या बन जाएंगे R minus 1 over R raised to power n minus 1 over R minus 1. बाकी क्या बचेगा हमारे पास, R एक कैंसिल हो गया है और हमारे पास R डिनोमिनेटर में R बचेगा, R की पावर n minus 1 बच जाएगी. अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करेंगे S और P और R दिया है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. P स्क्वायर इंटू R raised to power n, P स्क्वायर R raised to power n स्क्वायर के साथ ये 2n आ गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, R की पावर n इंटू n माइनस 1 बचेगी. जहाँ n आप पावर अप्लाई करते हैं तो A raised to power n R raised to power n इंटू n माइनस 1, और बाकी जो है R raised to power n माइनस 1 और R माइनस 1 की पावर n एज इट इज रखेंगे. ये कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये वाली चीज़ डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमिनेटर में है, ये कैंसिल हो जाएंगी आपस में. और हमारे पास A पावर n भी एक कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से एक ही बचेगा n, A पावर n इंटू R raised to power n माइनस 1 ओवर R माइनस 1 पावर n. इकट्ठा पावर हमने बाहर लिख दिया है, A टाइम्स R raised to power n माइनस 1 ओवर R माइनस 1 पावर n विच इज इक्वल टू S raised to power n. तो यही हमने प्रूव करना था. P स्क्वायर इंटू R raised to power n इज इक्वल टू S raised to power n. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ pth, qth and rth term of an AP are a small a, b, c respectively, show that q minus r into a plus r minus p into b plus p minus q into c is equal to 0. तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये ए बी सी स्मॉल ए बी सी ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, इसलिए हम लोग फर्स्ट टर्म ए नहीं यूज़ करेंगे, फर्स्ट टर्म कैपिटल ए, और जो हमारे पास कॉमन डिफरेंसेस को कैपिटल डी यूज़ करेंगे. ए प्लस पी माइनस 1 कैपिटल डी इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस आर माइनस 1 डी इज इक्वल टू सी. ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हमने ए बी सी की, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, और जब सब्स्टिट्यूट की है तो उसके बाद फर्स्ट जो फैक्टर है वो ए के साथ मल्टीप्लाई होना है. ए कॉमन ले लिया फर्स्ट फैक्टर, यहाँ से भी फर्स्ट फैक्टर ने ए के साथ मल्टीप्लाई होना है, इसलिए ए थ्रू आउट कॉमन ले लिया है. फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर प्लस थर्ड फैक्टर. इसी तरह से डी कॉमन ले लिया है. क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस 1, क्यू आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 एंड पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1. ये हमने फैक्टर अंदर आ गए हैं, मल्टीप्लाई कर लिए हैं. पहला फैक्टर सारे कैंसिल हो गए हैं, पी क्यू आर सभी एक दूसरे के साथ ए इंटू 0 आ गया है. डी फिर अंदर हमने सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है और सभी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, सभी टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रही हैं, और हमारे पास क्या बच रहा है डी इंटू 0, और राइट हैंड साइड हमें 0 ही रिक्वायर्ड थी जो हमने प्रूव कर दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. इफ ए टाइम्स 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी कॉमा बी टाइम्स 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर ए कॉमा सी टाइम्स 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी
are in AP, then prove that A, B, C are in AP। तो ये तीनों टर्म्स AP में हमें बताया गया है डेफिनेशन में कि अगर हम लोग सेम नंबर ऐड कर देते हैं सभी टर्म्स में तो जो हमारी प्रोग्रेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। 1 है तो 1 की जगह A/A लिखा जा सकता है, दूसरी टर्म में हमने B/B लिख दिया, तीसरी टर्म में C/C लिख दिया। A कॉमन लेने के बाद 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C कॉमा B 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C कॉमा C टाइम्स 1/A प्लस 1, ये भी AP में ही आएंगी, सभी AP में आएंगी। और अगर AP में आएंगी तो हम लोग किसी भी एक कॉमन नंबर के साथ डिवाइड कर दें, पॉजिटिव नंबर के साथ सभी टर्म्स को जो ऑलरेडी AP है, तो हमारी जो आफ्टर डिवीजन है प्रोग्रेशन दैट विल अगेन इन अर्थमेटिक progression, the form of arithmetic progression. So here A, B and C are in arithmetic progression. Next question हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, very important, very important question for 6 marks or you can say for 4 marks for the final examination. If A and B are the roots of x square minus 3x plus b and C, D are the roots of x square minus 12x plus q is equal to 0, where A, B, C, D form a GP, prove that q plus p is to q minus p is equal to 17:5। ये सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के थ्रू हमने लिख लिया है। A प्लस बी के सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, तो 3 के साथ नेगेटिव है, -b/a 3/1। प्रोडक्ट ऑफ रूट C/a के थ्रू हमारे पास आ गई वैल्यू ए बी की p, a प्लस बी की 3। सिमिलरली सम ऑफ रूट्स के थ्रू C प्लस डी की वैल्यू 12 आ गई, C इंटू डी की Q आ गई। और A B C D उसने GP में दी है, तो A फर्स्ट टर्म में B कितना आ गया, AR, C इज इक्वल टू AR स्क्वायर, D इज इक्वल टू AR क्यूब। हमने जो सम ऑफ रूट्स के थ्रू A प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास आया था 3, वहाँ A और B की वैल्यू पुट कर ली है और सिमिलरली C और D की वैल्यू पुट करके डिवाइड कर दिया है। और डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया है, AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब ओवर A प्लस AR इज इक्वल टू 12/3। यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1 प्लस R फैक्टर कैंसिल हो गया है, A भी कैंसिल हो गया है, R की वैल्यू +-2 आ गई है, यहाँ से R स्क्वायर देखें तो 4 आ गया है। कैलकुलेट क्या करना है, Q प्लस P ओवर Q माइनस P। Q किसके इक्वल था, CD, P की वैल्यू AB, CD प्लस AB ओवर CD माइनस AB। वैल्यू पुट कर दी हमने, फिर वही जो GP के थ्रू हमारे पास आई थी ABCD की वैल्यू पुट करने के बाद AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब प्लस A इंटू AR स्क्वायर प्लस इंटू AR क्यूब माइनस A इंटू AR, A स्क्वायर इंटू R कॉमन लेके R⁴ प्लस 1 ओवर R⁴ माइनस 1 बचता है, A स्क्वायर R कैंसिल हो जाएगा। R स्क्वायर की वैल्यू 4 है क्योंकि R पावर को लिखा जा सकता है R स्क्वायर पावर 2, तो R 4 की पावर 2 प्लस 1 4 पावर 2 माइनस 1 डिनोमिनेटर में, 16 प्लस 1 ओवर 16 माइनस 1 17 ओवर 5। तो यही रिक्वायर्ड हमने प्रूव करनी थी, जो रेशो थी Q प्लस P इज टू Q माइनस P इज इक्वल टू 7:15, यही हमने प्रूव करना था। ये आपके फर्स्ट 18 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के, और इसी तरह आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।